Lekin choyi Matluba ammayam bog'ga ko'z olatiryapti. Habibulla bo'lsa uy qurish uchun talab qilyapti. Botir qilish oson masoya. U akasini yaxshi ko'radi. Hadib, uyat, gunoh bo'ladi. Bir yumshoq uni botir qil. Erkakni ortidan xotin tursa, u sher bo'ladi. Sen eringni botir qil, tushundingmi? Sabr akam. Albatta uchun. Ha? Menda hamma hujjatlar tayyor. Xavotir olmang. Xo'p, deydi. Uyat qorinni to'ydirmaydi qizim. Unga bolalarini eslat, o'g'lingni kelajagi, qizingni sepidi. Otasi bolasini oldida ojiz bo'ladi. Ana o'shanda yeram, obro'yam seniki. Xo'sh, ana odamchi nima qildi ishni? Demak, eringni Sobirni mahkam qo'lga olgan, xo'pmi? Ering qattiq tursa, ammang ham, Habibulloh ham orqaga chekinadi. Oyi. O'zim men ham shuni aytmoqchi edim. Shu ishni tezroq hal qilish kerak. O'zing ham hamma hujjatlarni tasdiq qilib to'g'irlab qo'ygin. Undan ko'ra yaxshisi Qozog'iston orqali qochaman. Nodir aka, unaqa qilmang. Menga qara Zarina, meni qamashadi, tushunyapsanmi? Tinchlikmi Nodir aka? Bo'pti, yana gaplashamiz. Xo'p, xayr, mayli. Qayoqqadir ketyapsizmi? Eshitdim. Sudga berishar ekan. Meni qamashar ekan. Bu turishda bolamni ham ko'ra olmay qamalib ketaman. Dadajon, Ha? o'g'lingiz narsalarni yig'ishtirib ketmoqchilar. Tushunmadim, qayoqqa ketadi? Iltimos, Nodir aka qochmang. Siz oldingi Nodir emassiz-ku. O'zgargansiz. Nodir aka. Men o'sha qamoqxonaga yana kirgim kelmayapti. Hozir qochsangiz yana aybdor bo'lib qolasiz-ku. Men bolamizga nima deyman? Otang qochib ketgan deymanmi? Qani menga chaqiring. Hozir chaqiraman. Kechiring dedi. Iblis vasvasa qildi-da. Erkak kishi qochmaydi. Dedi. Chaqirtiribsiz. Qochmoqchi bo'ldingmi? Menga qara. Meni pulimni qaytarib ber. Pul? Qanaqa pul? Men sizdan hech So'z beraman, qochmayman. Shunaqa qil. O'zingni ham, meni ham uyatga qo'yma. Erkak kishi qilmishi uchun javob beradi. Men seni qochsin deb boqmaganman. Bo'ldi dadajon. tinchlikmi ertalabdan chaqirtirdingiz? Shuncha vaqt o'tdi. Ishni hali ham bitirmading. Pul berib, Komil akani o'ldirtirmoqchi bo'lganingizni. Sobir aka bilsa, keyin nima bo'ladi? Men nimani ko'raman? Agar ovozingni chiqarsang, o'ldiraman, tushundingmi? Meni mana shu Qanaqa pul olganim yo'q. Voy, Bir dinam olmadim. muttaham. Yaxshilikcha ber pulimni. Bo'lmasam ko'rasan. Pichog'ingdan qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Ha? O'ldir. Hozir taq. O'ldir. O'ldir. Yaxshi. Unda siz menga butun mahallaga sharmanda bo'lishni xohlamasangiz, jimgina yuring. Tushunarlimi? Voy marra.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का अफेयर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं उसे समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझसे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इससे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है और उसका बाप भी। और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अस्पताल उसे ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया, इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहती है कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो। और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का अफेयर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है,
اپنی ماں کے گھر آتی ہے اور اسے اپنی ساری سچائی بتاتی ہے، اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اس نے اچھا نہیں کیا، ہم اس پر پرچہ کریں گے اور اس پر اور وہ اس کی ماں کہتی کہ تم پریشان مت ہو بیٹا، ہم کو سوچتے ہیں سمجھائیں گے، نہ سمجھ آئی تو اس پر ہم پرچہ کریں گے۔ اور اس کا بھائی کہتا ہے میں ابھی جاتا ہوں، اس سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اس کی بہن کہتی ہے ابھی تو وہ کافی زیادہ غصے میں ہوگا، آپ پلیز کل جانا یا 2 دن بعد جانا۔ اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بہنا، میں کچھ دن بعد جاؤں گا۔ اور کچھ دن بعد وہ جاتا ہے، اپنی بہنوئی سے بات کرتا ہے کہ یہ تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو ایسا کہنے والے، میں جو کچھ مرضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور وہ اسے جاتا ہے، پرچہ کرا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور اس کی ماں کہتی ہے کہ رہنے دو، کوئی بات نہیں، صلح پر بات ختم ہو جائے گی، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے صلح نہیں کرنی، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھ سے بے وفائی کی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اس کی زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اسے کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور اس کی ماں سمجھاتی کہ بیٹا ایسی زندگی نہیں گزرتی، انسان غلطیاں کر لیتا ہے لیکن غلطی کی تو معافی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی ماں سے کافی زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم اس سے صلح کر لو۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں اسے صلح نہیں کروں گا، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، میں اس سے زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا۔ اور یہیں پر اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں آ جاتی ہے، اور اس کا ابا بھی، اور اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ ہسپتال اسے لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس نے کافی زیادہ پریشانی لی ہے اور جس کی وجہ سے اسے اٹیک آیا، اس کا مزید خیال رکھیں کیونکہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اپنی زندگی سے جان تو ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ گھر اور اس کا مزید خیال رکھو، اور وہ یہ سب باتیں ختم کر دیتی ہے۔ جو آمنہ ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں سوچنا اور سب کچھ۔ السلام علیکم ناظرین، جو آمنہ ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ ناراض ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لڑ رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کا شوہر کا افیئر کسی اور سے چل رہا ہوتا ہے، اور اسے روکتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے تم ہوتی کون ہو مجھے یہ کہنے والی، میں جہاں بھی جاؤں میری مرضی، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی۔ اور آمنہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، مجھے روکنے کی تو بالکل بھی کوشش مت کرنا۔ اس کا شوہر کہتا ہے تم ابھی کی جاتی، آج کی جاتی ابھی جاؤ، مجھے کیا، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے مت آنا کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں زندگی گزارنا چاہتی۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے میری زندگی سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ اس کا افیئر کسی اور سے چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے ہی محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، اور وہ کافی زیادہ لڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں اپنی ماں باپ کو بتاؤں گی، اپنے بھائی کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے مجھے تمہاری کسی بھی خاندان اور تمہارے کسی بھی بھائی باپ اور ماں کا کسی کا بھی ڈر نہیں ہے، تم جہاں بھی جاؤ میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے مت آنا، اور وہ چلی جاتی ہے، اپنی ماں کے گھر آتی ہے اور اسے اپنی ساری سچائی بتاتی ہے، اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اس نے اچھا نہیں کیا، ہم اس پر پرچہ کریں گے اور اس پر اور وہ اس کی ماں کہتی کہ تم پریشان مت ہو بیٹا، ہم کو سوچتے ہیں سمجھائیں گے، نہ سمجھ آئی تو اس پر ہم پرچہ کریں گے۔ اور اس کا بھائی کہتا ہے میں ابھی جاتا ہوں، اس سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اس کی بہن کہتی ہے ابھی تو وہ کافی زیادہ غصے میں ہوگا، آپ پلیز کل جانا یا 2 دن بعد جانا۔ اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بہنا، میں کچھ دن بعد جاؤں گا۔ اور کچھ دن بعد وہ جاتا ہے، اپنی بہنوئی سے بات کرتا ہے کہ یہ تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو ایسا کہنے والے، میں جو کچھ مرضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور وہ اسے جاتا ہے، پرچہ کرا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور اس کی ماں کہتی ہے کہ رہنے دو، کوئی بات نہیں، صلح پر بات ختم ہو جائے گی، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے صلح نہیں کرنی، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھ سے بے وفائی کی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اس کی زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اسے کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور اس کی ماں سمجھاتی کہ بیٹا ایسی زندگی نہیں گزرتی، انسان غلطیاں کر لیتا ہے لیکن غلطی کی تو معافی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی ماں سے کافی زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ
कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझसे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इससे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, और उसका बाप भी, और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अस्पताल उसे ले जाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया, इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहती है कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो। और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का फेर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती, आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझसे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इसे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, और उसका बाप भी, और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अस्पताल उसे ले जाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया, इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहती है कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो। और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का फेर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती, आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या,
मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है। तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन है ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उससे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इसे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है और उसका बाप भी। और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो हस्पताल उसे ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया, इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो। और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का फेर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती, आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है। तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं
कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन है ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है, पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उससे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इसे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है और उसका बाप भी। और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो हस्पताल उसे ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया, इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहती है कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो। और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का फेर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती, आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं उसे समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन है ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है, पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उससे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इसे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और
यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, और उसका बाप भी, और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो हस्पताल उसे ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया। इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो, और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का फेर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती, आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं उसे समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन है ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उससे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इससे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, और उसका बाप भी, और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो हस्पताल उसे ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया। इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो, और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का फेर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती, आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या,
मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं उसे समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन है ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उससे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इससे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है और उसका बाप भी। और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो हस्पताल उसे ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया, इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहती है कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो। और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ